So, one of the student wants to know, what is the right age to begin this? Like, there are a couple of students who are from third year, fourth year. So, should they begin preparing while they're in the last year of their colleges, or earlier than that, or once they're done with their colleges? What would you suggest? I think there is actually right time is when you are conscious about that. Like if you are conscious in the second year about UPSC preparation and your career ahead in UPSC in civil services, then I think you can start in second year itself. Like I was not sure, I was not aware about UPSC till my final year of the exam. When I went to NTPC in my job, then only I came to know ऐसा भी कोई चीज होता है जिससे आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, ऐसा कोई एग्जाम होता है। तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था, वरना मेरा उस टाइम इंटरेस्ट था उस चीज में। तो मेरे को लगता है अगर किसी का इंटरेस्ट है और उसको जाना है तो कॉलेज ऐसा है, ऐसा टाइम होता है, बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम वहाँ पर फ्री मिलता है बिसाइड्स अवर रेगुलर स्टडीज विच वी लाइक devote or waste, I can say, in so many events. So I think if a person is like conscious about going to civil services in college itself, he can start there itself, be it in second year, third year, or final year. That does not matter. Yes, very, very rightly said now. Next is, how students want to know that how to develop a right strategy for preparation without the help of coaching. Okay. So I think, ma'am, in this the thing is self study is most important. Many people have asked me on Instagram also, sir, which coaching we should join. So I personally did not attend any coaching for my general studies, and I did it for philosophy because it was technical, and I was sure I would not be able to complete it myself. And So it was not I something of your background also. Like, exactly, some exactly. students I pick am up from engineering background, subjects. Yes. so that was not of my background as well. So I think self study is most important, and the problem is the mistake which many aspirants do is they keep on shifting their strategies. Suppose आज मेरा सेमिनार सुन रहे हैं या कुछ आज मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बना लेंगे। कल हो सकता है कोई और टॉपर आ जाए तो उसके हिसाब से वो चेंज कर लेंगे, परसों किसी और के हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो वो कहेंगे उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ये बोला, सबको मिक्स कर देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अभी इतने सारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स चलते हैं आज की तारीख में, सो मेनी वीडियोज आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो एक एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए कि जितना उसको रिसर्च करना है एट when he is deciding to appear for UPSC, he should do his own research and 10-15 वीडियो जितने भी देखना है उसको देख डालने चाहिए। उसमें से जो उसको लगता है कि ये हाँ ये चीजें मैं कर सकता हूँ, उसको अपने हिसाब उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी अपना लेनी चाहिए। एंड देन अगर उसको कोई मेंटर मिल जाता है आज की तारीख में, सपोज मान लीजिए जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे यूजली अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, जो भी मेरा पर्सनल टाइम होता है उसमें। तो इफ सम बिकॉज आई फील बिकॉज मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं भी ऐसे ही करता था कि एक देयर वाज अ ब्यूरोक्रेट ऑफ 2012 बैच, गीतांजलि ब्रांडन, she qualified in 2011 or 12, so she was posted in IFS that time. So I, because my dream was IFS, तो आई यूज टू टॉक टू हर ऑन फेसबुक। और मेरे पास अगर एक भी रिप्लाई आ जाता था तो मेरे को इतना मोटिवेशन मिलता था कि शी इज रिप्लाइंग टू मी एंड आई एम गेटिंग द करेक्ट स्ट्रेटजी। So if a person is able to get some mentor or is able to talk to the person who is qualified, then I think it makes a better impression and make and Absolutely. gives him a, and besides that self study तो करना ही करना है, उसके बिना कोई 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 सोल्यूशन ही नहीं है उसका। आप बाजीराम चले जाइए, विजन आईएएस चले जाइए, फोरम आईएएस चले जाइए, कुछ नहीं होगा अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। they will Very rightly just said now. they will just The give you a main thing is direction। self-study. Yes. yes, main thing is self study। I think जो आप लोग अभी आपका जो प्रोग्राम चल रहा है मैम, आई थिंक दैट फोकसेस ऑन दैट इटसेल्फ, सेल्फ स्टडी प्लस Absolutely. मेंटरशिप। तो We आई थिंक are, we want to empower the student from day one towards self study, क्योंकि आपको कोई नहीं पढ़ा सकता इसके लिए, आपको खुद बिल्कुल ही पढ़ना है, आपको खुद ही पढ़ना है। आप you take coaching for 6 months, 1 year or 2 years, you have to study. There's no alternative. We can't put things into your mind, you have to do it. एग्जैक्टली। सो एवरीवन हैज टू मेक देयर ओन थॉट्स इन दिस प्रोसेस। द प्रॉब्लम इज, हो सकता है अगर मान लीजिए हम बाजीराम का एग्जांपल दें, वहां पे कोई इंटरनेशनल रिलेशन के कोई टीचर है सपोज, ही इज गिविंग कॉमन इनपुट्स टू एवरीवन। नाउ द थिंग इज 400 बच्चे अगर क्लास में बैठे हुए हैं तो सबको अपने अपने थॉट्स बनाने हैं और उसके हिसाब से सबको आंसर लिखना है। अब उन 400 बच्चों को सेम मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में, सबको अलग अलग मार्क्स मिलेंगे जिस हिसाब से जिसने लिखा होगा। आई थिंक वीविंग योर ओन थॉट्स इन योर माइंड
एट द बैक ऑफ योर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो किस तरीके से पूछी जाएगी वहां पे। तो सेल्फ स्टडी से क्या होता है कि आप डिस्कवर करते हो चीजों को खुद से, एंड आपके दिमाग में एक अनकॉन्शियसली एक थॉट्स उसके बारे में क्रिएट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, 2014 में एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वाई Nalanda is known as university. Takshila is not considered to be a university that time. Yes. Takshila used to be considered a school or something like that. Some question was there. So I had just read that on Wikipedia somewhere, and I don't know under what reference. बट वो सेल्फ स्टडी का पार्ट था मेरा, वो किसी कोचिंग में उस टाइम नहीं पढ़ाया गया था, ना किसी बुकलेट में छपा हुआ था। तो वो एक सेल्फ स्टडी का पार्ट था, मैंने कहीं पे बस ऐसी पासिंग मेंशन तरीके से उसको पढ़ लिया था, एंड उस एक पॉइंट से जो मेरे को वहां से मिला था उससे मैंने पूरा आंसर लिखा उसको। तो You're very आई right. थिंक सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। Very rightly said. And जो आपने mentor वाली बात बोली वो भी बिल्कुल सही है। The main problem is when you go to a coaching, you become dependent on whosoever is available at that point of time. So let's say your preparation, because everyone is can't crack in one attempt. So they might crack in 1, 2, 3, 4 attempts. It's actually a journey. It's not about exam. It's a journey. So if each time your mentor is changing, each time you're changing your strategy, and if you keep revising your strategy all the time, how are you going to build a strategy? So the number where one way, as you said, rightly said, now we have to have our own strategy, and that is we can build only through self study. But the other way is, some students, every individual is different. So some students are are very like just enterprising like you, they build their own strategies. But there are many students who are dependent on their mentors. They feel that उनके दिमाग में चलते रहता है कि हम शायद गलत स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हम शायद गलत स्ट्रैटेजी बना रहे, शायद ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल नहीं हो। और और वो इतने बहुत बार आउटगोइंग भी नहीं होते। जैसे आपको पता है बहुत बच्चे होते हैं जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं, उनको घबराहट होती है, डर लगता है ब्यूरोक्रेट से बात करने में या किसी से इतना खुल के विचारों को अभिव्यक्ति करने में। तो मेरे को क्या लगता है, दिस इज ऑल्सो वन रीजन, सिंस यू गॉट इट इन, सो आई वुड लाइक टू टेल थ्रू you that this is also in self study program we've taken care of this also, that if we have assigned you a mentor, whether you clear in 1 attempt, 2 attempts, 3 attempts or 6 attempts, the mentor provided to you will remain the same, because we don't want from strategy to from year to year the mentor keeps changing. If the mentor keeps changing, how would you be stable? And as you said, 400 बच्चे क्लास में हैं, हर इंडिविजुअल की अलग इंडिविजुअलिटी है, राइट? नाउ इफ वी गिव अ स्टैंडर्ड आंसर टू स्टूडेंट्स, many students would just try to mug up that answer and reproduce it, and they उनका attempt कोशिश क्या होगी, उसको रट के बेस्ट पॉसिबल वे में वही लिख के आने की। They are not understanding UPSC is looking for uniqueness. It's not looking for people who can cram well. It's not looking for, they're looking for bureaucrats who have their, who have the ability to do decision making. So one aspect that self study program tries to do is, it says aap khud exam, aap khud answer likho, and there's no standard answer on the planet. We will make your answers a unique answer, and then we will never provide you a standard answer, because the day we provide you a standard answer, we are again pushing you to the rat race, and we don't want you to we don't want to push you to the rat race. We want to make your answer different answer from all the other 20 students or 30 students who are there in the class. Why should you write what the other person has written? And I think that is one reason why most students, even after learning so well, mugging up so well, fail in this exam, क्योंकि हम रट के लिख के आ रहे हैं। हम उसमें अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी यूनिकनेस तो बिल्कुल किल कर देते, एंड वी बिलीव जो कोचिंग ने पढ़ा दिया, इट्स लाइक अ बाइबल, तो बस जो पढ़ लिया उसको वैसे के वैसे ही लिख के आना है। सो व्हाट वुड यू से नाउ? नहीं, मैं बिल्कुल आपने सही बात बोली। जैसे मैंने आपको बोला कि एक एस्से भी होता है यहाँ पे, ठीक है? एस्से इज लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स, जो आप सोचते हैं, और एस्से प्लस एथिक्स इज वेल। तो एथिक्स में आई थिंक यूपीएससी की स्ट्रेटेजी यही है, वो इतना लेंथी पेपर इसलिए बनाते हैं कि आपको ज्यादा अपने दिमाग में आइडियाज बनाने का भी टाइम ना मिले। जो आइडियाज आपके हैं वही वहां पे पेपर पे निकलेंगे।
बिल्कुल। आपको सोचना होता है वहाँ पे एक्चुअली, अगर आपको पेपर कंप्लीट करना है। तो अगर मैं जिस तरीके से बाय डिफॉल्ट सोचता हूँ वही मेरा राइटिंग में निकलेगा। आई थिंक एथिक्स हम्म। पेपर मतलब कुछ हद तक इस तरीके से जज करने की कोशिश करते हैं वो एस्पिरेंट को। तो अगर आपने थॉट्स खुद से पहले नहीं बनाए हुए हैं और अगर आप रटने वाली टेंडेंसी अगर आपकी है, एक चार लाइनें बताई हैं टीचर ने उसी को लिख के आना है सेम टू सेम, एक वर्ड इधर से उधर ना हो। तो आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। एंड यूपीएससी जो क्वेश्चंस दे रही है आजकल वो इसीलिए इतना डाइवर्सिफाइड जनरलिस्टिक क्वेश्चंस दे रहे हैं वो लोग, जिससे कि आपके जो रटे रटाए आंसर्स हैं दैट यू विल नॉट बी एबल टू पुट एनीवेयर। आपको खुद से एनीवे। ही सोच के लिखना पड़ेगा। एंड लाइक देयर इज सो मच ऑफ क्रॉस लिंकिंग अक्रॉस द सब्जेक्ट्स। अगर आप जीएस टू लिख रहे हैं तो उसमें थ्री से कुछ डराइव हो रहा होगा, थ्री लिख रहे हैं तो टू से कुछ लिंक हो रहा होगा, वन लिख रहे हैं तो वन वाला भी टू से आजकल लिंक हो जाता है। इवन लाइक आई रिमेम्बर वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज देयर, इसमें एससी एसटी एक्ट के बारे में था क्वेश्चन, जो कि यूजुअली पॉलिटी का पार्ट है, बट पेपर वन ने उसको पूछा था और उन्होंने पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। तो आप एक्सपेक्ट करके नहीं जा सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज टू का पेपर है तो टू ही रिवाइज करके जाएंगे। जो आप पुरानी जितनी स्टडी है सब काम आती है हर पेपर में। तो वो एब्सोल्युटली। तभी आएगी जब आप सेल्फ स्टडी करके खुद से आपके थॉट्स आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तभी वो क्लैरिटी आएगी, तभी वो जो डिमांड है आंसर की तभी आप वो लिख पाएंगे।